इस बच्ची नाल हुई है। अबू हरेरा ने एक कार च कली सी, इनू आया अंदर छिक के लै गए, मारिया कुट्टा चपेटा चक वड्डे, इंदी बांह ते छुरी उन्हें मारी। एक बारी नहीं कीता, उन्हें बार बार कीता। अगर तू ना उतारे ते तैनू जानो मार देंदा। 15 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਬੂ ਹਰੇਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਣਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੜ ਸਕਦਾ बस। 20 दिन हो गए ने फड़िया है, वो गिरफ्तार है, अजे तक उनकी गिरफ्तारी नहीं पई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान में हर 40 मिनट बाद एक रेप केस रिपोर्ट होता है। 5 में से सिर्फ एक रेप केस रिपोर्ट होता है, जबकि 4 रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 78% रेप केसेस पंजाब से रिपोर्ट होते हैं। पिछले 4 माह में 2026 में 4000 रेप केसेस पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 78% पंजाब में थे। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। मेरे साथ जो इस वक्त फैमिली मौजूद है, पिछले 19 दिन से लाहौर की सड़कों पे धूल खा रही है इंसाफ के लिए। इंसाफ किस चीज़ के लिए चाहिए? ये 12 साला ईमान फातिमा जो खुजरा शाह मुकीम में राजोवाल की रिहायशी हैं, और गांव के बड़े वडेरे ने, बड़े ज़मींदार ने इस 12 साला बच्ची के साथ की। और के बाद जब ये सारी फैमिली FIR करवाने गई तो 8 दिन तक FIR नहीं हुई। 8 दिन बाद जब 4 तारीख को FIR हुई तो आज 15 दिन गुजर चुके हैं उस 4 तारीख के भी, और अभी तक उस शख्स को गिरफ़्तार नहीं किया गया। उस शख्स की गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई कानूनी तौर पे। ना इनके मेडिकल सैंपल्स को आगे भिजवाया गया है, ना उस शख्स का DNA किया गया है। सारा मामला है क्या, आपको इस फैमिली की ज़ुबानी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप अपने घर से दरबदर हैं, आप रो रही हैं, आप सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या हुआ इस मासूम बच्ची के साथ? इस बच्ची नाल हुई है। किने एक कीती बारी है? नहीं, अबू हरेरा ने एक बारी नहीं कीता, उन्हें बार बार कीता। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ बार बार कीता है कि मतलब? ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਚਪੇਟਾਂ ਚੱਕ ਵੱਡੇ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਛੁਰੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੂ। उत्तो नबील और इमरान आया। नबील और इमरान कौन? वो मेरे एक मेरा भनेवा है, एक मेरे चाचे का ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ? मैं डिग्गी सा मोटरसाइकिल तो मेरा एक्सीडेंट होया। ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਖਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਖਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ? जी ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਨ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਗੋਹ ਫੜਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਵਹਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਬੱਚੀ 15 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਟੀਂਦੀ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਟੀਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰ ਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਛੜਕਾ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਗਵਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਵਹਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਲੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਦਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੜਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ? ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਹਮੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੌਦਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਾਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਕਤ ਉਹ ਕਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਬੂ ਹਰੇਰਾ? ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇੱਕੋ ਹਵੇਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ 7 ਵੇਲੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਊਦੀ, ਲੇਕਿਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਛੇੜਦਾ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਜੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ 7 ਤਲਾਸ਼। ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਭਾਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 26 ਕੀ ਤਰੀਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਕੰਮ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਅਬੂ ਰਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ? ਜੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਥਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਦਰਖਾਸਤ ਲਹਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਪੈਸਾ? ਆਖਦਾ ਸੀ? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਵੇਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਵੇਦ ਜੀ, ਅਸਲਮ? ਜੀ ਜਵੇਦ ਅਸਲਮ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ? ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਖਾਦੀ ਖਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ? ਭਾਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾਦੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋ। ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਬੂ ਰਹਿਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਾਂ, ਅੰਮੀ ਅੱਛਾ। ਅੱਬੂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਨੱਸ ਗਿਆ? ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ? ਜੀ। ਫਿਰ? ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿ ਬੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਫਿਰ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਾਨਾਮੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈ। ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੀ। ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ? ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ, ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਆ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਆ? ਔਰ ਤੇ ਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਨਬੀਲ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਜੀ, ਉਹ ਆਏ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ? ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮਾਰਿਆ? ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ईमान फातिमा के वालिद मौजूद हैं। जनाब आला की मामला होया, थोड़ा जा दसो कि इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस की कह रही है? ਪਹਿਲੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ, ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਿਆ। अच्छा, पहले उन्हें कोशिश की थी? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਸਨ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਵਾਲੇ ਇੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦੀ, अच्छा, ਇੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਐ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਰਾਨ ਤੇ ਹੰਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਟੇ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਾਂ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਰ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਟੁੱਕਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਣਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੜ ਸਕਦਾ ਬਸ। ये बच्ची के जो हमसाए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आला की मामला होया? इल्तिजा है अल्लाह पाक से कि ये ना और मरियम नवाज साहिबा से कि ये गरीब मस्कीन तकरीबन महीना हो चुका है। आपका इनके घर के साथ घर है? नहीं, पिंड साढ़े नाल ही है। अच्छा। साढ़े एक गांव दे ने। एक गांव दे? हाँ जी। अच्छा। लेकिन ये भी इन्हां नाल हुई है, बड़ी वड्डी हुई है। उन्होंने अजे तक पार्सल जमा नहीं करवाया, गिरफ्तारी नहीं पाई। उन्हें अजे तक कोई जड़ा ना रिपोर्ट मैडिकल रिपोर्ट नहीं करवाई। इन्हां गरीबां नाल बड़ी सख्त इन्हां नूं इंसाफ दिलाया जाए ते इन्हां दे हाल ते कोई रहम कीता जाए। साडी जान नूं खतरा हैगा? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? गरीब लोग ने आते गरीब लोग ने ना थानेदार जान जोगे ना किरे बाहर जावन जोगे, उन्हां तो डरदे ने, नशे भज्जे ने। हाँ डरदे ने उन्हां तो। इंसाफ पीछे। हाँ जी, वो दांदे ने भी बह जो जाओ ही ना किसी पासे। अगर ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ नहीं जी नहीं, अल्लाह के हुक्म नाल नहीं। ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ਦਿਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ना जी ना। ਤਮਾਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਇਹਦਾ ਨੇ ਬਕੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ नहीं जी कोशिश की ਇਹਨੇ। पुलिस अपना मौक़िफ़ देना ही नहीं चाह रही इस सिलसिले में। जो पुलिस है उसने मुलज़म तो गिरफ़्तार कर लिया है, उसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ नहीं जी नहीं, अल्लाह के हुक्म नाल नहीं। ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ਦਿਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ना जी ना। ਤਮਾਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਇਹਦਾ ਨੇ ਬਕੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ नहीं जी कोशिश की ਇਹਨੇ। पुलिस अपना मौक़िफ़ देना ही नहीं चाह रही इस सिलसिले में। जो पुलिस है उसने मुलज़म तो गिरफ़्तार कर लिया है, उसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली। चल हाज़रीन, हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके राजोवाल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ से 12 साला ईमान फातिमा के साथ मुबैना इज्तिमाई का वाक़या पेश आया। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ईमान फातिमा का घर है, एक कमरे का घर है और इसमें उसकी पूरी फैमिली रहती है, उसके वालिद, उसकी वालिदा और उसके बहन भाई। ये साथ ही सारी भैंसें, सारे जानवर यहाँ पे मौजूद हैं जिनको वो संभालते थे। इस गांव के ज़मींदार ने उस बच्ची के साथ की है या क्या हकीकत है, बताने की आपको इस प्रोग्राम में भरपूर कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, गांव वालों से बात करते हैं, ज़मींदार से इस मामले की सारी हकीकत जांचने की भरपूर कोशिश करते हैं। अबू हुरैरा जो सारे वाक़े का मुल्ज़िम है, उसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद है, चचा मौजूद है, चचा के साहबजादे मौजूद है। जनाबे वाला अबू हुरैरा आपका साहबजादा, जी। इस पे जो ये सारा इल्ज़ाम लगाया गया है, कितनी सदाकत है इनमें? ये बेबुनियाद ते झूठा इल्ज़ाम है जी। जिस दिन का वकूआ बना देने 26 तरीक का, अच्छा। उस दिन अबू हुरैरा 1 बजे तो लैके ते 4:30 बजे तक मेरे घर CCTV कैमरे मौजूद ने, अच्छा। लगे ने। वो घर ही रहा है, सुता रहा है। अच्छा। ਤੇ ਘਰੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਲੀਗਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, CCTV ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਉਹ 5:58 ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा, तुम कह रहे हो कि CCTV फुटेज हाँ जी, मौजूद है, मौजूद कैमरे है। लगे ने, हाँ जी। साढ़े कोल सबूत ही है। सबूत है, सबूत अल्लाह दे हुक्म। अच्छा, तो तुसी फिर चीज़ सामने रेस की थी, ताड़ा बच्चा हाली क्यों पुलिस की कस्टडी च है अगर वो कसूरवार नहीं है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। अच्छा, कह रहे हैं कि पहले भी कोई 3 महीने पहले भी ताड़े मुंडे ने हरकत की थी, स्टाम होया, सुलह हुई है। ਉਹ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ तो फिर तुसी सुलह क्यों की थी? ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਫੜਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ।
ਉਹ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਫਿਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਜਾ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹਨੀ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਫਿਰ ਕਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫੜੀਜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਾਮ ਹੀ ਵੇਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਵੇਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਣਾ ਲੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਈ ਚਲੀਏ। ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਬੂ ਰਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਰਮਾਨ ਹਰੀ ਤੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ? ਉਹ 302 ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤ ਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤ ਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ? ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਰੋਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਰਸ਼ਾ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਚੋਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਕੂਆ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੋ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਈਏ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨੇ ਬਕੂਆ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ 1/4 ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਨੋਮੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਨੋਮੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਤੱਤਿਦ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ? ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, 26 ਇਸ ਤਰੀਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦੀ- 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਦੀ ਕਾਲ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵਣ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵਣ। ਕੋਈ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ? ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੁਝੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਬੂ ਰਹਿਰਾ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਬੂ ਰਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ 3 ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਦਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਕੂਆ ਸੀ ਹੁੰਦੀ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਐਡਾ ਸੰਗੀਨ ਵਕੂਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, 27 ਨੂੰ DPO ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, 28 ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ਕੀਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ?
वकील तो कराए जब बंदा चलान होगा तो अभी तो बंदा पुलिस ने जरा बिठाया अधीन ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ नहीं असं पुलिस ने रुपया नहीं दिता ਅੱਛਾ असं कहना उन्हें 2 करोड़ दिता है ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ असं क्यों मारा उन्हें सारा उन्हें की झगड़ा जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ थाना हुजरा शाह मुकीम, ताकि हम पुलिस का मौक़िफ़ जान सके, पुलिस का इस सारे मामले में क्या स्टांस है, पुलिस ने क्या तफ्तीश की और पुलिस ने इसकी क्या रिपोर्ट निकाली है, इब्तदाई रिपोर्ट क्या है, हतमी रिपोर्ट क्या है। इस सारे मामले में हम पुलिस का मौक़िफ़ यहाँ लेने आए और सुबह से लेके शाम होने को आई है। ना SHO रज़ा शाह साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, ना DPO उकाड़ा अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं और पुलिस की तरफ से कोई भी आला अफसर अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है। हमारे साथ GNN के नुमाइंदा खुसूसी नदीम अख्तर साहब यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इस सारे मामले में पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है, DPO उकाड़ा अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है, सारा मामला चल क्या रहा है, सिचुएशन है क्या, हकीकत क्या? ये सर बिल्कुल आपके सामने ही है। हम तो सुबह से ही जो है ना इनका मौक़िफ़, पुलिस का मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिपोर्ट में, तो हमारी कोशिश ये है कि मौक़िफ़ आ जाए। हम इस सिलसिले में जवेद असलम साहब जो SI हैं जिनके पास मिसल है, ठीक है, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में हूँ और रज़ा शाह साहब वही है, मैं आपको बता दूं जिनके बारे में जो विक्टिम है कहते हैं कि उन्होंने मुलज़िम पार्टी से रिश्वत लिया है 50 लाख रुपया। जब हमारी SHO साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नंबर ऑफ जा रहा है और सुना है कि वो जो आज किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं, तो DPO साहब भी मीटिंग में मसरूफ़ है। जी DPO साहब भी जितनी पुलिस है तमाम मसरूफ़ है जी। इस वक्त कोई एक सवाल आ गया, कोई मीडिया आ गया लोगों से, लग रहा है कि जो है ना पुलिस अपना मौक़िफ़ देना ही नहीं चाह रही इस सिलसिले में, चूँकि जो मुतासरा ख़ानदान है उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम है कि जो पुलिस है उसने मुलज़म तो गिरफ़्तार कर लिया है लेकिन ताहाल उसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली। तो उस सिलसिले में जो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आके पूछें कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या हक़ाइक़ हैं। अगर तो मुलज़म जिस पे ये इल्ज़ाम है बेगुनाह है तो उसको रिलीज़ किया जाए, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं, और इन केस अगर वो गिल्टी है तो उसको जो है ना जुडिशल किया जाए। अच्छा सर, आपको कैसे सारे मामले का पता चला, आपने ये न्यूज़ कैसे ब्रेक की, क्या रिपोर्ट आप तक आई? ये चूँकि जी मैं मकामी तौर पे रिपोर्टर हूँ और अपने फ़राइज़ अंजाम देता हूँ साख्ती, तो मेरे तक ये ख़बर पहुँची तो मैंने इसकी अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की, मुतासरा ख़ानदान से मिला, उसके अहले महल्ला है उनसे बातचीत हुई, उनके मतलब सारी पूछताछ की, तो उनका मौक़िफ़ यही है कि जो है ना ये हमारे साथ पिछले को 1 माह से ये हो रही है और पुलिस हमें जो है ना इंसाफ मुहैया नहीं कर रही है। हमारा पर्चा भी जो है तकरीबन को 5 रोज़ बाद दर्ज हुआ है, तो इस सिलसिला में हम थाना में हाज़िर हुए थे। पहले भी एक दिन जो है ना इस सिलसिले में हम आए हैं। लेकिन अच्छा, आपने दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ देखा, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, किसी तरह से कोताही हो रही है या पुलिस भी बीच में सारे मामले में शामिल है? दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ आपके सामने है, आपने भी सुना है, हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि कहाँ तक हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा, या हमको पुलिस ने बताना था। तो पुलिस तो मौक़िफ़ अपना देने से पता नहीं क्यों इनकारी है। या नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा मामला सारा ये है कि एक 12 साला बच्ची ईमान फ़ातिमा जिसके साथ मुबैना होती है और उसके घर वाले क्लेम करते हैं कि जो गांव के ज़मींदार हैं जिनके पास वो काम करते हैं, जिनके वो मुलाजिम हैं, उनके भतीजे अबू हुरैरा ने ये सारा वाक़या किया। और उस वाक़े के बाद जब हम अबू हुरैरा की फ़ैमिली से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी एक ज़ाती दुश्मनी है, ख़ानदानी दुश्मनी है, वो उनकी ये सारी प्लानिंग है। उस पर हम पुलिस का मौक़िफ़ लेने आते हैं तो पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है। कौन ठीक है, कौन गलत है, किसके साथ कौन जालिम है, फ़ैसला आपने करना है। फिरोज वाला के एक नवाही इलाके में जहाँ पे 15 साला मिनाहिल के साथ की गई उसके माजूर भाई के सामने एक चारपाई भी सामने हटा हुआ, दूसरी चारपाई पे उसका गला कटा कटा। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से मुलाकात हुई, वो तसल्ली देकर चली गई। डिसेबल भाई था, उसके सामने हुई और उसके बाद गला काटा। बहुत से लोगों को PFS से पॉलीग्राफ और फोरेंसिक के लिए भेजा, जिन लोगों को भेजा उनका तो अभी तक मैच नहीं हुआ। फिरोज वाला के एक नवाही इलाके में जहाँ पे 15 साला मिनाहिल के साथ
की गई उसके माजूर भाई के सामने। एक चारपाई भी सामने लेटा हुआ, दूसरी चारपाई पे उसका गला कटा जी है। कटा। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से मुलाकात हुई। वो तसल्ली देकर चली गई। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़िरोज़ वाला के एक नवाही इलाके में, जहाँ पे 15 साला मिनाहिल के साथ की गई उसके माजूर भाई के सामने, और उस के बाद उसका गला काट दिया गया और उसे इस जहाने फ़ानी से रुखसत कर दिया गया। आज हम मिनाहिल के घर मौजूद हैं और आपको इस सारे मामले की हकीकत बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। आइए। या नाज़रीन, इस वक्त मैं फ़िरोज़ वाला के नवाही इलाके में 15 साला मिनाहिल के घर मौजूद हूँ। ये उसका 1 साल बड़ा भाई है, माजूर भाई। ये आप उसकी हालत देख सकते हैं। ये बच्चा अभी यहाँ बैठा हुआ है, 16 साल इसकी उम्र है, इब्तिसाम इसका नाम है। इस बच्चे के सामने क़यामत बर्पा की गई। इसकी सगी बहन के साथ मुबैना का वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, क़यामत खेज़ वाक़या पेश आया। इस सारे अफसोसनाक वाक़े में हक़ सच के लिए जिसने आवाज़ बुलंद की और इंसाफ के लिए खड़े हुए 15 साला मिनाहिल और 16 साला इब्तिसाम के चचा बाबर अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। मिनाहिल और इब्तिसाम के वालिद चूँकि मलेशिया होते हैं, तो उनके चचा इस सारे केस की पैरवी कर रहे हैं। जनाबे वाला, ये सारा अफसोसनाक वाक़या, इसके लिए जितनी आवाज़ बुलंद की जाए कम है। मामला हुआ क्या, थोड़ा बताएं। ये शादी थी हमारी गांव में चाचाजाद भाई की। ये इस घर में हम 4 फैमिलियां रहती हैं, 4 भाई की फैमिलियां हैं। वो चारों ही तकरीबन शादी पे गए हुए थे। चाचे के बेटे की शादी। अच्छा, आपके बड़े भाई के बच्चे हैं ये? जी, ये मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं। अच्छा, तमाम अफराद जो है ना वो। और आपके कितने भाई हैं? हाँ 2 जी? और भाई हैं? 3 भाई हैं ना, एक बड़ा मुझसे 2 छोटे हैं। अच्छा, उनकी भी शादियाँ हुई हैं। वो भी आपके साथ गए थे शादी पे? जी जी, वो अपनी भी फैमिलीज के साथ? जी जी। तो घर में कौन था? घर में ये भतीजा मेरा एहतसाम अली, ये था घर में। एक मनाहल छोटी है इनसे जी, जिसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या जिसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। अच्छा, वो इससे छोटी है। अच्छा, आप लोग शादी पे गए? हाँ जी, 3 बजे हम घर से निकले हैं। अच्छा, दोपहर? नज़दीक ही शादी थी। तकरीबन 2 घंटे का बीच में टाइम लगा हमको। 2 घंटे के बाद हम जब घर आए हैं तो उसको देखा तो उसका गला कटा हुआ है। घर में आए हैं। कहाँ पे? इधर कमरे में? जी जी, या साथ वाले कमरे। साथ वाले कमरे में। और ये इब्तिसाम? ये उसके पास ही बिल्कुल लेटा हुआ है। एक चारपाई पे इब्तिसाम लेटा हुआ, दूसरी चारपाई पे उसका गला कटा जी कटा हुआ। तो फिर FIR कब हुई? FIR सर 29 तारीख को ही, तकरीबन 29 को या 30 को हो गई थी। अच्छा, लेकिन पैरवाई नहीं हुई अभी तक। पैरवाई ये केस CCD को दे दिया पुलिस ने? जी। बंदा फाइंड आउट किया है किसने किया ये मामला? किसी को भी नहीं, ना अभी तक पकड़ा, ना हमको बुलाया भाई ये मिसाल शनाख्त कर लें, ये मुजरिम पकड़ा हमने। अच्छा सर, आप फरमा रहे हैं कि महीना हो गया और अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, CCD ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, तो CCD इस मामले में क्यों नहीं कुछ कर रही? CCD के जो अफसरान हैं ना, वो हमारे कुछ मुखालफत है गांव में। वो मुखालफिन के डेरे पे आकर बैठते हैं। अच्छा, वो उनको गलत ब्रीफ करते हैं आपके मुखालफिन? जी, जो मुखालफिन हैं। आपको इसलिए आपको क्या लगता है ये जो सारा वो कहते हैं, मुखालफिन को जोर यही डालते हैं ना भी इनके घर में ही होगा केस, इनको ही तशद्दुद का निशाना बनाएं, इसलिए टॉर्चर हमें किया जा रहा है। CCD क्योंकि आपके मुखालफों के साथ डेरे पे उठती बैठती है और आपके मुखालफों ने उन पर जोर दिया हुआ है, वो आपके घर में तफ्तीश कर रहे हैं, आपके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो क्या तफ्तीश कर रहे हैं आपके खिलाफ? हमारे घर वालों को ले जाकर पॉलीग्राफी भी कर ली उन्होंने। वो चेक करते हैं कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? मशीनें लगाते हैं? मशीनें लगाते हैं। अच्छा, वो भी सब टेस्ट हो गए हैं। अभी तकरीबन 2 हफ्ते के हफ्ता डेढ़ हो गया, आए ही नहीं है कोई भी अफसर, पूछ नहीं आया ही नहीं कोई भी। कोई आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है उन्होंने? कोई उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट नहीं दी है। FIR किसने लिखवाई है? FIR मैंने खुद लिखाई। आपने खुद लिखवाई है? कोई वकील नहीं डाला उन्होंने? नहीं, कोई नहीं। अभी उन्होंने भी आपको गाइड नहीं किया कि कोई वकील आपकी तगड़ी FIR लिखवाए? नहीं, कोई नहीं अभी तक। और किसी ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है उन्होंने मुझे। अच्छा, ना फोरेंसिक रिपोर्ट दी है, ना किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अच्छा, मुझे बताइएगा, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से मुलाकात हुई, जी उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई थी आप? वो तसल्ली देकर चली गई कि बहुत जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन कोई उन्होंने आपको नंबर दिया कि आपके अगर कोई इदारे ना सुने तो मुझे डायरेक्ट? कोई नंबर नहीं दिया मुझे, कोई नहीं।
इस सारे मामले के बाद बच्ची के वाले साहब आए फिर पाकिस्तान, जी क्या आ गए। मामला हुआ, वो क्या चाह रहे हैं? वो भी इंसाफ की अपील ही कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। इस पे शक है आप? शक के दायरे में तो कुछ हैं घर, लेकिन वो अभी तक वो पूछते आपके नहीं हैं। मुखालिफिन की है जिनके साथ सीसीडी बैठती है? हाँ जी मुखालिफ। वही हैं, वही लोग हैं नहीं नहीं, या कोई और है? को और भी होगा, लेकिन वो पूछेंगे अभी मुझे confirm नहीं है ना किसने ये सीसीडी वाले घटिया हरकत की पूछेंगे है। तो मैं बताऊंगा ना। अभी तक तो वो पूछते नहीं है भाई किस पे शक है। सीसीडी के अफसर हैं, अच्छा, शाहजमान है और एक इस्माइल डोगर है, समर डोगर है, ये 3-4 अफसर हैं। एक शिराज कुमन है, अच्छा, वो भी मुखालफिन के डेरे पे जाता है। 15 साल मिलाहिल, 16 साल इब्तिसाम, उनका ये भाई है। क्या नाम है बच्चे आपका? अदनान। अदनान, ये सारा क्या मामला हुआ, क्या सारा बताओ। हम शादी पर गए हुए थे और जब आए तो हमें ये छोटी बहन अंदर गई, उसने देखा कि आप ही को पता नहीं क्या हुआ। वो आई बाहर, चाचू कपड़े पहन कर बाहर निकला, चाचू से कहने लगी कि बहन को पता नहीं क्या हुआ है। चाचू जाकर देखा, क्या पता घबरा गई हो। क्या करती थी बहन? वो पढ़ाई का शौक था तो वो बड़ी पढ़ती बहन आप थी ही ज़्यादा। जी पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में? जी ऐसा कोई मामला नहीं था? आपसे बातें करती थी? जी बातें शेयर करती थी? जी बताती थी सब? क्या उसकी रूटीन थी? वो ऐसे हमें मेरे साथ ही, उसने स्कूल जाना, मेरे साथ ही आना है। आपके साथ स्कूल जाती थी? जी। आपके साथ स्कूल से वापस आती थी? जी। और एकेडमी वगैरह? अकेडमी वगैरह मैं जाता था, मेरी बहन नहीं थी जाती, ये घर में पढ़ती थी। क्या कहना चाहेंगे आप मरीम नवाज़ को? हमें इंसाफ चाहिए। बच्ची के चचा हमारे साथ मौजूद है, फैमिली मौजूद है। जनाबे वाला थोड़ा बताएं मामले का। ये घर है, इसमें कैसे कोई एंटर हो गया, कौन आ सकता है, शक किस पे है? ऐसे पेश है, हम सारे शादी पे गए थे आज अच्छा। फैमिली, तो जो ही जब उधर पता चलता है कि नाहिल कत्ल हो गई है, फौत हो गई है, तो हम उधर से आते हैं। तो आपको वहाँ पे पता चला? जी उधर पता चला। वहाँ पे कैसे पता चला? वहाँ पे कॉल जाती है मेरे बड़े भाई को ही, तो किसने कॉल की थी? इधर से ना दूसरा ताए का बेटा छोटा है, अच्छा, उसने कॉल की मुदस्सर ने। उसको कैसे पता चला? वो घर आता है इधर पहले, अच्छा, तो वो ना छोटी भतीजी साथ आती है, अच्छा, जो बच्ची की बहन थी ना छोटी, अच्छा, वो देखती है तो वो चाचू की तरफ जाती है, चाचू उधर होता है ना, अच्छा, तो वो ये फैमिली इधर होती है, तो वो जाती है उधर, कहती चाचू पता नहीं बहना को क्या हुआ है, तो चाचू कहता है शायद केली हो, घबरा गई होगी, तो वो आता है इधर, तो वो देखता है तो उसका गला कटा हो, उसका गला कटा हुआ होता है, तो फिर वो कॉल करता है अपने बड़े भाई को, तो ये इसको कॉल जाती, फिर ये वापस आ जाते हैं, तो फिर हमें भी उधर पता चल जाता है कि नाहिल फौत हो गई है। फिर उधर से वापस आते हैं तो देखते हैं तो घर में क़यामत खेज़ होते हैं, मनाजर देखने को ये मिलते हैं। तो पता ही नहीं अभी तक चल रहा कि कौन बंदा है, कौन है वो जिसने ये सारा कुछ किया। कोई दुश्मनी है आपके गांव में? नहीं, हमारी किसी के साथ दुश्मनी वगैरह नहीं है। अच्छा, एक और चचा मौजूद है हमारे साथ। जनाबे वाला गांव देहात में तो ऐसा वाक़या, क्योंकि हर किसी को कोई दूसरा बंदा जानता है, हर घर में पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रहता है, कौन मेहमान आया। जी जी। तो शहर की बात होती तो फिर समझ आती, ये तो गांव देहात है, इधर कैसे पता नहीं चला कौन आया कौन गया? बस यही तो बात है। देखें अभी 1 माह होने वाला है वाक़े को, लेकिन अभी तक कोई आदमी सामने नहीं आ रहा। आप लोगों को किस पे शक है? हमें तो सारे गांव पे ही शक है, हमें तो अभी किसी आदमी पे शक तो नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से तो सारा गांव ही चोर है। बच्ची क्यों रुकी थी घर में? बच्ची जो ना उसका भाई है एक बड़ा, वो मजदूर है जी, इब्तिसाम। अच्छा, उसकी देखभाल के लिए रुकी थी, अकेली थी, बाकी पूरे घर वाले शादी पे गए? बाकी सब शादी पे गए हुए थे। डिसेबल भाई था, उसके सामने हुई और उसके बाद गला काटा। बहुत से लोगों को PFS से पॉलीग्राफ और फोरेंसिक के लिए भेजा, जिन लोगों को भेजा उनका तो अभी तक मैच नहीं हुआ। ये नाज़रीन, मेरे साथ पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन आर वेरी ऑन हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग। मैम, हर जगह सोशल मीडिया पे आप नज़र आ रही हैं, कोई भी केस हाईलाइट होता है ख़वातीन को लेके, सबसे पहले हिना परवेज़ भट्ट पहुंचती हैं, वो आवाज़ उठाती हैं, ट्विटर पे बहुत एक्टिव नज़र आती हैं। चल क्या रहा है, पंजाब वुमेन अथॉरिटी क्या कर रही है और कैसे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने देखा है कि पंजाब में पहली दफ़ा एक खातून चीफ मिनिस्टर आई और उनकी पहली स्पीच में ये बात बहुत क्लियर थी कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद या इंटॉलरेंस या डिसरिस्पेक्ट या क्राइम विल नॉट बी टॉलरेटेड। और उन्होंने ये विज़न जो है वो पूरे पंजाब में ट्रांसलेट किया।
उनके आने के बाद पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी दोबारा फ़ाल हुई। और पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बेसिकली एक अदारा है जिसमें कोई भी खातून अगर वो घरेलू तशद्दुद से, खुदा न खास्ता किसी किस्म के वायलेंस से, रेप जैसे क्राइम से या एसिड थ्रोइंग से, मर्डर, ऑनर किलिंग, किसी भी क्राइम से गुज़रे, तो ये एक ऑल इन वन अथॉरिटी है जिसमें हम उस खातून सर्वाइवर को, मैं विक्टिम नहीं कहती बिकॉज़ मुझे लगता है कि उन औरतों को हिम्मत और करेज देनी चाहिए। जो औरत हमारे पास आती है अपनी आवाज़ बुलंद करने, उसमें बड़ा करेज और रेजिलियंस होता है। तो जब वो आती है तो उसकी FIR दर्ज करने से लेके उसको फ्री लीगल एड लॉयर हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ उनको रिहैबिलिटेशन, हमारे पास शेल्टर होम्स भी हैं, विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स भी हैं। उसके बाद उनके जितने भी केसेस होते हैं, चाहे कस्टडी का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, प्रोटेक्शन का केस हो, वो हेल्प करते हैं फाइल करने में। अच्छा, मैं मिनाहिल 15 साल फिरोज़वाला में लिबान गाँव है, वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, अभी उनकी फैमिली से हम मिले। वो ये क्लेम करते हैं कि बच्ची के जो डिसेबल भाई था उसके सामने और उसके बाद गला काटा गया। तो वो आप भी वहाँ पे गई, आपने विज़िट किया, तो 1 माह हो गया। उस केस में क्या आपने कोई फाइंडिंग्स आई, कोई पकड़ा गया, कोई मुलजिम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो वाक़े पे मैं ख़ुद भी गई और बहुत दिल दुखा देने वाला वाक़या था और मैं भी बहुत शॉक थी क्योंकि पेरेंट्स ही ट्रैवल कर रहे थे। फादर तो मलेशिया थे और वालदा और चचा वगैरह सारे गए हुए थे शादी में। और जब वापस आए तो वो पैरालाइज भाई के सामने उस बच्ची का जिस तरह बुरी तरह कत्ल किया गया, बहुत दिल टूटा, बहुत। और वो केस CCT को हैंड ओवर कर दिया और उसकी डिटेल्स आपको उनसे ही मिलेंगी, लेकिन इंसाफ जो है वो 100%। आप उनके पास गई थी, मैंने कहा उसका कोई आउटपुट आई उस केस की? हमने बहुत से लोगों को PFSA, पॉलीग्राफ और फोरेंसिक के लिए भेजा। जिन लोगों को भेजा उनका तो अभी तक मैच नहीं हुआ। बिल्कुल वो यही कह रहे हैं। हाँ, तो वो अब CCD वो मरीम नवाज़ साहिबा को बार बार अपील कर रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। जो CCD वाले हैं वो हमारे जो गाँव के मुखालिफ हैं उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं उनके डेरे में। कभी नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। नहीं, दैट्स नॉट। अभी हमने घंटा पहले इंटरव्यू किया उनका। हाँ, दैट्स नॉट ट्रू। मैं आपको ये बात बता दूँ कि जब सानिया ज़ारा का केस था तब बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने की कोशिश हुई, लेकिन मैडम मरीम नवाज शरीफ बहुत क्लियर थी, 0 टॉलरेंस। उन्होंने मुझे कहा कि स्टैंड फॉर जस्टिस। 12 साल ईमान फातिमा खुजरा शाह मुकीम में, तो उनका वो उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे भाग रही है, कभी यहाँ जा रही है लाहौर में कि हम गांव वापस जाएंगे तो वो हमें वडेरा मार देगा जिसने 12 साल ईमान फातिमा के साथ। ही इज़ अरेस्टेड। तो वो अरेस्टेड है। मैं बिल्कुल वहाँ गया हूँ, मैं गाँव में गया हूँ। ही इज़ अरेस्टेड और ऐसे नहीं होता वो, क्योंकि उनकी फैमिली कह रही है कि हमें वो वापस जाएंगे तो वो मार देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। गाँव गया तो वो बंदा अरेस्ट था इस्लामों के पीछे। ऐसी बात नहीं होती। ये ठीक है, पाकिस्तान एक स्टेट है और रियासत पाकिस्तान को आप देख रहे हैं। अभी आपने जिस तरह देखा, हमारे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हमारी पुलिस, हमारी CCD, हमारी FIA, हमारी चीफ मिनिस्टर, हमारे सारे अथॉरिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे काम करते हैं। मैं जब आपको कह रही हूँ कि वो बंदा अरेस्टेड है तो ये मैं आपको एक बहुत सही इन्फॉर्मेशन दूँ। इंसाफ मिलेगा फैमिली को, जो मेन मोटिव है। इंसाफ मिलना फैमिली को उसकी राइट है। जो भी पंजाब के लोग, पंजाब के वासी देख रहे हैं, जितने ज़्यादती के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? ख़वातीन को ये पैगाम दूंगी कि रिपोर्ट लाजमी करें। किसी से डर या खौफ की वजह से अगर कोई भी घरेलू तशद्दुद का मामला है उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। और पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक अदारा है जो आपके लिए 24/7 खुला है। मेरा ऑफिस जो है वो एक ओपन कचहरी की तरह है। मैं हर बंदे को वेलकम करती हूँ। आप आएँ, मुझे मिलें। आपका कोई भी केस है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी से डील किया जाएगा और आपको इंसाफ देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मरीम नवाज शरीफ का आपसे वादा है कि पंजाब को महफूज बनाना हमारी अव्वली तरजीह है। पाकिस्तान में
ज्यादती के बढ़ते हुए केसेस पर पकड़ टीम ने आपको सच दिखाने की भरपूर कोशिश की। अब फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।